Good evening, everyone, and this is the final match of the booster round day one. Panchala Pride versus Periyar Panthers.
Hello, check.
Good evening, welcome back, and today we are witnessing match number 49, booster round day 1. Panchala Pride versus Periyar Panthers is the match we'll be witnessing. Both the teams are sitting on the 6th and the 5th position on the points table. So it's going to be very, very important that who will be the supreme of both of them. So this is a live match. We are watching it from Ranchi. And today's fixtures are, Hampi Heroes have won over Kaziranga Rhinos very comfortably, and Murthal Magnets have won over Maratha Marbles. Aravali Arrows have just lost with 1 point against Vijayanagara V's, and now we'll witness the last match of the evening, Panchala Pride versus Periyar Panthers. So interesting match, as we say, because there's a booster round. Only the top 8 teams are here, as we see. Sitting on the top, after beating Kaziranga Rhinos, the Hampi Heroes on the top. Murthal Magnets, 2nd spot. Kaziranga, is being pushed down to 3rd spot. Aravali Arrows on the 4th. Panchala Pride would be on the 5th. Periyar Panthers would be taking on the 5th position if they would be able to beat Panchala Pride today. And Vijayanagara V's and Maratha Marbles and 7th and 8th positions respectively. As we see, a lot of changes would happen on the points table going forward as well, because every single match is equally important going forward. As we have seen, the points table is being carried forward from the survival round. So it's very important for every team to continue their momentum here. Yes, everything is set out there. Now it is very important for these teams to exhibit the best. Especially Periyar Panthers are always good at, strong comebacks. And Panchala Pride, though, they have, a rough phase, a lot of ups and downs. And now we have all set in the stadium. Harshit is waiting to eat both the teams. Welcome, Harshit. Okay, so thank you so much, Radhika. समय है अब दोनों ही टीमें कड़ी टक्कर, कड़ी प्रतिद्वंद्वी के लिए तैयार है। तो चलते हैं इस बड़े मुकाबले की तरफ। पंचाला प्राइड अपने प्राइड को बरकरार रखना चाहेगा और पैंथर्स की टीम पैंथर्स की तरफ वार करना चाहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बुला लेते हैं हमारी टीम प्राइड को, यानी कि लेट्स इनवाइट पंचाला प्राइड। और चलिए आज पंचाला प्राइड के विरुद्ध होगी टीम लेट्स इनवाइट पेरियार पैंथर्स। Yes, both the teams are warming up. If you look at the starting 7 of Panchala Pride, here we see Prince Raj right at the center, and who will be supported by Sandeep Singh and Vishal Kumar as support raiders. In the covers, we have Satyam Singh and Nishant Kumar, one of the best in support, I'll say, in the left cover. And Ankit Singh, Arman Sharma. Arman Sharma, one of the all-rounders we see as a captain, and Ankit Singh on the right corners. So looks like a combination team, but they need to work it out collectively. Now we have our co-commentator Harshit to introduce Periyar Panthers to welcome Harshit. थैंक यू सो मच राधिका, वन मोर टाइम। और चलते हैं यहाँ पर पेरियार पैंथर्स की शुरुआती साथ से बात कर लेते हैं। लेफ्ट राइडर के तौर पर आज आपको नजर आएंगे अजय पंडित, उनका साथ निभाएंगे सुमित चिल्लर, रवि खत्री, अक्षय धुल होंगे, अजय गुलिया होंगे और मौजूद होंगे वहाँ पर आशीष चिल्लर और गौरव चिल्लर की यहाँ पर ये जोड़ी। आज थोड़े से बदलाव आपको जरूर देखने को मिलेंगे और सब्स्टिट्यूट में बहुत सारे खिलाड़ी नजर आएंगे, अंकुश, प्रिंस, हर्ष, भरत और रवि साकेत। और जिस तरह से राधिका आपने बात की थी कि दोनों ही टीमें एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन सर्वाइवल राउंड में दर्शाया था, यहां पर देखना होगा। और अगर हम हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो 2 मुकाबले पक्ष में गए हैं पंचाला प्राइड के और 2 मुकाबले पक्ष में गए हैं पेरियार पैंथर्स के लिए।
Yeah, that is again from the summer edition and also from the survival round we are talking about. And just the toss happened. It looks like Periyar Panthers have won the toss. On the left side is Periyar Panthers, right side is Arman for Panchala Pride. Of course, they will look to take the court. जी हाँ बिल्कुल, और एक और बार जब सिक्का उछला इस बार गिरा पेरियार पैंथर्स के पक्ष में और उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर कोर्ट चूज करने का फैसला किया। और देखिए अगर हम प्लेयर्स की बात करें कि कौन से खिलाड़ी आज एक बार फिर से अपनी टीम के लिए नाम दर्शाते हुए नजर आएंगे। 10 नंबर की जर्सी है और हमेशा 10 नंबर की जर्सी कुछ कमाल खेलने के लिए जानी जाती है। प्रिंस राज की हम बात कर रहे हैं, 8 मुकाबले खेले हैं, 81 रेड पॉइंट्स उनके खाते में है। रेड स्ट्राइक रेट भी बहुत ही लाजवाब है, लगभग यहाँ पर आपको नजर आएगी 64 की तरफ, यानी कि एक बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट है। और जिस तरह से आप बात करते हैं प्रिंस राज क्या एक बार फिर से आज राज कर पाएंगे इस कबड्डी के मैट पर। और वहीं पर पेरियार पैंथर्स की बात करते हैं आपसे राधिका। Yeah, Ajay Gulia is the player we're looking out for with 7 matches playing, 29 rate points, rate strike rate is 45. Not very impressive, but then he needs to pick it up. That's Ajay Gulia for us. He just played about 7 matches, but all eyes on this player. As we see, both the teams are looking for that little warm-up just before they get on the real match. Panchala Pride have played 9 matches. They have won 4, lost 4 and 1 tie. You know, this is what the last 5 matches looks like. They have won 3, lost 1, tie 1. So the last match they have got a tie against Tadoba Tigers, if I'm not wrong. So that's the one. And Periyar Panthers, they have played 9, won 5, lost 4. So they have no ties. The points per match are 3.2. Harshit. जी हाँ बिल्कुल, और दोनों ही टीमों की यहाँ पर आपने वार्तालाप की और जिस तरह से पिछले 5 मुकाबलों में 3 मुकाबले हारी है ये टीम, 2 मुकाबले जीते जरूर हैं, पर निश्चित तौर पर आज फिर से अपने बूस्टर राउंड की शुरुआत एक लाजवाब अंदाज में करना चाहेंगे। और लाजवाब अंदाज में शुरुआत कब होगी? जब यहाँ पर काउंटडाउन की तरफ हम चलेंगे। तो चलिए काउंटडाउन के बाद शुरुआत करते हैं। तो पूरे जोश जज्बा और जुनून के साथ स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का मैच नंबर 49 में युवा कबड्डी सीरीज मॉनसून एडिशन 2022। और चलिए पंचाला प्राइड बताना चाहेंगे, यहाँ पर आपको ग्रीन साइड में नजर आएंगे और वहीं ब्लू और बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको नजर आने वाले हैं पेरियार पैंथर्स की टीम। तो चलिए यहाँ से शुरुआत पंचाला प्राइड की तरफ से रेडर करते हुए नजर आएंगे। 10 नंबर जर्सी जिनके बारे में हमने बहुत सारी बात की थी, 81 रेड पॉइंट्स हैं। प्रिंस राज के अंदर जाकर यहाँ पर पॉइंट लाने का पूरा प्रयास करेंगे और विपक्षी टीम के 10 नंबर खिलाड़ी यानी कि अजय गुलिया को इस बार भेजा है ऑफ कोर्ट। Yeah, the lead raider has taken care of the threat to him. That is Ajay Gulia. He went for that ankle hold with a solo hand. That's not possible anyways. So that was the player we were supposed to look at for the first trade, but he's been kept quiet. Now this is Akshat Dul for us. Full strength. Will he, start off with a bang? Because he's tall enough, he should go ahead and he takes care of Arman on the left corner. जी और बिल्कुल बहुत ही कॉन्फिडेंट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और चलिए बिल्कुल इस बार 7 नंबर जर्सी यानी कि लेफ्ट कॉर्नर को अपना शिकार बनाया है। जी नहीं है, यहाँ पर 2 पॉइंट मिलते हुए नजर आएंगे। 2 पॉइंट शायद यहाँ पर क्या मिलते हुए नजर आएंगे, यानी कि एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है पेरियार पैंथर्स के लिए। और हम अक्षित की बात कर रहे हैं। अक्षित एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने समर एडिशन में हमें बहुत इंप्रेस किया था। हालांकि चलिए अभी स्कोर जरूर यहाँ से बराबर होता हुआ नजर आएगा। पंचाला प्राइड एक और पॉइंट यहाँ से प्राप्त करेंगे। प्रिंस राज आसानी के साथ, चलिए एक और पॉइंट। Man, that was a swift kick on the left corner and Gaurav Chiller, the captain, is kept quiet in the second raid of Prince. So he brings a lot of variation onto the table. Whenever the Prince comes up, he doesn't do a lot of footwork, but then slow and steady, but he does it so quickly, the escape especially. And this is Akshat Dul, looks for a bonus on the right flank of the defense. जी हाँ, देखना होगा कितना अंदर जाकर प्रयास करना चाहेंगे। बहुत ही अच्छे युवा खिलाड़ी राधिका ये, और जिस अंदाज में अपना प्रदर्शन दर्शाते हैं, ज़्यादा अंदर जाते नहीं, अपनी काबिलियत पर खेलने का प्रयास करते हैं। और टीम कोच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सुरेंद्र नजर आएंगे पेरियार पैंथर्स के लिए, और वहाँ पर रोहित कुमार नजर आएंगे। जिस तरह से पंचाला प्राइड और एक बहुत ही अच्छी टीम यहाँ पर दोनों ही टीम है, पेरियार पैंथर्स और पंचाला प्राइड
और प्रिंस लगातार राइट रेड लेफ्ट कॉर्नर को अपना शिकार बनाने का लगातार प्रयास करना चाहेंगे। 6 का हाउस है, बोनस लेने का क्या प्रयास करना चाहेंगे। चलिए इस बार संभल कर वापस आएंगे। Absolutely, that was an empty raid for Prince on his third raid. Ajay Pandit, this is the raider. We are supposed to look at how well he executes his skill. A left raider and the left cover. We'll talk about Nishant so much, but looks like the raider is safe. Wow, that's an escape, I'll say. They thought they have finished it, but if you haven't done it properly, you have given away those gaps. He reaches the midline. Will they review it? और देखिए निशांत को अपना शिकार बनाया है। निशांत जो कि एक मजबूत डिफेंडर है और मजबूत कड़ी है अपनी टीम के लिए। अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक था, स्ट्रॉन्ग रोकने का प्रयास था, पर जिस अंदाज में चपलता दर्शाई अजय पंडित ने, आसानी के साथ अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट लेकर गए। यानी कि सेकेंड मल्टीपल रेड पॉइंट्स यहां पर मिली है। पेरियार पैंथर्स इस बार थोड़ा सा गलती करते नजर आएंगे। नंबर 1 जर्सी सुमित चिल्लर राइट कवर से आ रहे थे, डबल थाई होल्ड करने का प्रयास किया। बहुत ज्यादा बॉक लाइन की अगर आप आगे से करने की कोशिश करते हैं, देखिए बहुत ज्यादा आगे से। और किस खिलाड़ी को, प्रिंस राज जैसे खिलाड़ी जो इतनी लाजवाब फॉर्म में है अपनी टीम के लिए, उनके विरुद्ध आप ऐसी गलतियां कर सकते नहीं है। Absolutely, and this is Ajay Gulia yet again. They have nice combination. They have right and left combination. Periyar Panthers, they have using them wisely. Now Arman comes in on the left corner after the revival. Now, 5 people in the defense. The raider we can risk because only it would be difficult, especially when it's 4 or 5 in the defense. If you look at this, Harshit, Prince Raj doesn't have an alternate to rotate the raids. He is the only one raider who is going. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही करा दिया कि अभी तक प्रिंस राज इकलौते ऐसे रेडर यहाँ पर नजर आए जो लगातार अपनी रेड्स करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये शुरुआती मुकाबला है, शुरुआती समय है, बूस्टर राउंड का बड़ा मुकाबला है, पर फिर भी लगातार पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं और शायद ये पॉइंट्स लेकर आना ही इनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है। और देखिए जब आप इतनी बड़ी सीरीज में होते हैं ना राधिका, तो निश्चित तौर पर पंचाला प्राइड को इस बात का जरूर ध्यान में रखना होगा कि जितनी बड़ी सीरीज है आपको सब्स्टिट्यूट रेडर्स ऐसे बनाने होंगे, ऐसे खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देना होगा कि जब प्रिंस राज थोड़ा सा वहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको रिवाइवल मिल पाए और साथ ही साथ खिलाड़ी भी मिल पाए। Absolutely, because he would definitely gasp. He's going for continuous raid. He'll be exhausted. He won't be able to 100%. But then this is what it is. A hasty challenge after the bonus. This is Prince Raj yet again. We'll only talk about Prince Raj in the raiding department of Panchala Pride. Now it's high time they should rotate the rest of the raiders. We have Sandeep there. We also have Vishal there. You need to use them. And he goes out empty-handed this time. इस बार बिल्कुल एम्प्टी रेड के साथ यहाँ पर वापस जाते हुए नजर आएंगे। और आपने बिल्कुल सही बात परखी है कि पेरियर पैंथर्स के लिए आपको अजय गुलिया नजर आते हैं और इस बार नंबर 3 जर्सी गए थे रेड के लिए। अजय पंडित एक बार फिर से गए थे और ऐसा लगा कि वहां पर विपक्षी टीम पहले ही मन बनाकर रखा था कि चाहे कोई भी आए मैं प्रयास करने जाऊंगा। नंबर 7 जर्सी कप्तान है अरमान, और ऐसे अरमानों को सजाना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि इतना ज्यादा एडवांस जाकर इसे टैकल करना ये बिल्कुल शायद थोड़ा सा गलत राधिका। Absolutely, he is looking completely off color today. What was the anticipation on him? That was an easy point. He understands that that's a disappointing tackle from his own, so he should learn from it. Now this is Prince Raj yet again. How many times will he raid? Continuous raids. The defense will also set as per the rhythm of the raider footwork. So that's not really impressive for Panchala Pride to not to rotate their raiders. I understand, Prince Raj is one of the best you have in the mix. But then, one raider in this long tournament is definitely not wise. और देखिए नंबर 3 जर्सी यहाँ पर सत्यम आप राइट इन की पोजीशन से शायद वहाँ पर गए थे इस गतिविधि को रोकने के लिए। पर देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि पंचाला प्राइड के लिए लगातार प्रिंस राज रेड करने जा रहे हैं। डिफेंस सेटल हो सकता है पर डिफेंस सेटल हो नहीं पा रहा है, उनकी वो जो रिदम है उसे पकड़ नहीं पा रहा है। इस बार क्या रिदम अक्षित की भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। निशांत और अरमान लगातार ऑफ कलर हैं, 2 टीम के अच्छे डिफेंडर यहाँ पर ऑफ कलर नजर आ रहे हैं और रेडर्स का शुरुआती समय में बोलबाला नजर आ रहा है। और देखिए दोनों ही टीमों के ज्यादा रेडर्स ने पॉइंट नहीं ले रहा अधिका, डिफेंडर्स ने शायद थोड़ा आगे जाकर पॉइंट्स दिए। ये भाई देखिए बॉक लाइन, बल्कि आपके पास निशान ball line say the mid line is about 3.75 meters
and the Raiders are nearly, at least an average of 5.5. You can't hold them at the back line. So their reach is enough to get there. So just to try and avoid such kind of advanced tackles, and especially coming in from Nishant, he did it twice today. So they should learn quickly, before it gets too late for them. जी हाँ, इन युवा खिलाड़ियों के लिए सीख जो ये शब्द है ना, ये बहुत ही बड़ा होना चाहिए। डिक्शनरी में से आप आउटलाइन करके रख लीजिए, क्योंकि हमेशा सीखते रहना है। और रोहित कुमार वहाँ पर जिस तरह से देखिए वहाँ पर मौजूद हैं, टीम के कोच हैं पंचाला प्राइड के लिए। अब देखना होगा एक बार फिर से क्या अक्षित, देखिए एक तरफ प्रिंस राज और दूसरी तरफ वहाँ पर अक्षित, ये दोनों खिलाड़ी। और इस बार डिफेंस में किसे आउट किया है अक्षित ने, एक बड़े खिलाड़ी को जिसकी आवश्यकता थी। That's what, that is Prince Raj who went in. He was in doubt whether to go back or not. So that's a big one for Periyar Panthers, because they don't have much options when coming to, raiding. It's Sandeep Kumar in here. He is claiming one on the right cover. Will he get that? They have the reviews, as we say. Each team has one unsuccessful review in each half. So it would be a revival point. He did it. He was pretty much closer to the radar. जी हाँ, राइट कवर पर अपना शिकार बनाया था सुमित चिल्लर को, ऐसा नजर आया। देखते हैं कि यहाँ पर किस रिव्यू की मांग करना चाहेंगे। टीवी अंपायर पेरियर पैंथर की मांग है नो टच पॉइंट, जबकि हमारा निर्णय है 1 टच पॉइंट। और देखिए कितनी तहजीब से यहाँ पर बता दिया हमारे रेफरीज ने कि देखना होगा कि क्या ये किस पोजीशन पर निर्णय जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं राधिका, ये यहाँ पर ऐसा नजर आया, हालांकि बहुत ज्यादा कंक्लूसिव दिख नहीं रहा है इस एंगल से, और हमारे टीवी और हमारे रेफरीज जरूरी से और क्लियरली देखना चाहेंगे और देखना होगा, इस निर्णय का इंतजार रहेगा। राधिका, आप क्या कहती हैं इस निर्णय के बारे में? I mean, for me, in the first instance, the defender was very, very close to the radar. So it looks like, a hand touch on the right cover. But then we have a different angle. We are looking at the backside of the defense. So I'm sure the third umpire will definitely have the other angle as well. So we will definitely get to the right decision. और देखिए अब आपको जिस तरह से स्क्रीन पर हमारे डिग्निटरीज नजर आ रहे हैं, जो लगातार चाहे भारत का कोई सा भी कोना होना, वो कबड्डी के लिए जो प्रेम है वो बहुत ही अनन्य है। और कबड्डी इसी तरह का एक खेल है, सभी खिलाड़ी तैयार हैं और सुमित चिल्लर को अपना शिकार बनाने का प्रयास किया था इस बार संदीप ने। देखते हैं यहाँ पर निर्णय क्या रहेगा अंतिम। रिव्यू असफल रहा। और देखिए राधिका, अगर आपने कह दिया है ना तो वो कैसे हो सकता है, क्योंकि आपकी भी इतनी वो पार की नजरें हैं कि आपने पहले टेक में बता दिया था कि सुमित चिल्लर को माफ कीजिएगा अपना शिकार बनाया है, और बिल्कुल बनाया है संदीप ने यहाँ पर। And they have lost the review for the first half. That is, Periyar Panthers have lost it. Now Panchala Pride, they got one revival after that running hand. That's what we say, Harshit. When you have raiders like Sandeep, why did you always have to use Prince Raj? When you have Prince Raj, that was the first raid for him. So anything could happen. So just try and rotate your raiders before the scores goes wider. Exactly. बिल्कुल आपने सही कहा, और इसी को अब जरूर यहाँ से फॉलो करना चाहेगा पंचाला प्राइड का खेमा। अब देखना होगा एक बार फिर से रेडर पंचाला प्राइड के लिए राइट रेड के साथ वहाँ पर नजर आएंगे आपको एक बार फिर से संदीप। देखिए वहाँ पर 6 का हाउस है, ये देखिए कितना लाजवाब स्विफ्ट टो टच है। अगर इनके पास इतनी काबिलियत है, देखिए इससे पहले प्रिंस राज को आउट किया था अक्षित ने, इस बार संदीप ने बदला लिया है। अक्षित को वहाँ पर यानी कि विपक्षी टीम के बेस्ट रीडर को इस बार चलता करते नजर आएंगे। अक्षित देखिए रेडर हैं, इनकी पोजीशन पर खड़े हुए थे। देखते हैं कोच अभी क्या कह रहे हैं, क्या वार्तालाप कर रहे हैं। कम से कम देख भी ले कि अड़ा मार रहा है, जानती खेल ले मेरे भाई, कवर भी अरे टूटने लाग रहा, टूटे के ला की गया था, टूटे के है मारोगा जब है टूटो मत गुड़िया, अरे डाई मार दे मेरे भाई, डरे मत ना, बोनस ने दाबी की खेल ले, बोनस छोड़े तू, और तू घना ट्रेन का चक्कर मत रही है, कदे छत्ती आ गए ट्रेन ले ठागी दर दिए ना, बोनस से घना मत बढ़ जाइए, ठीक से थर्ड अगली आओगे। और देखिए राधिका कितने क्लियर वॉइस में यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पर हमारे कोच कॉर्नर में हमें पता चला कि हर एक बारीकियत के साथ यहाँ पर कोच बहुत कुछ समझाते हैं। राधिका, आपको क्या अनूठा लगा इस बात में? He says, the left corner who is the captain,
he need not leave those bonus points. That's what he says. And also the right cover. Why are you getting scared? Go for those dashes. That's what he says. And that was yet again Arman. Today he is completely off color. We have seen him one of the best captains, the raider, a defender, a captain. But then today he completely falls. A back hold. When you take the raider on a back hold, take the power of the raider onto you. Let him sit on your lap. That is how the success would be in a back hold. If you just lean forward, that's an easy point for raider. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो जांघों पर होना चाहिए होता है। अगर आप जिस तरह से यहाँ पर होल्ड करना चाहते हैं, वो भी बैक होल्ड, क्योंकि सबसे मुश्किल और सबसे ताकतवर डिफेंस में से एक कहा जाता है बैक होल्ड को। उसमें अपनी ताकत का पूरा परिचय देना होता है। और जिस तरह से यहाँ पर कोचेस कह रहे थे कि बोनस कभी कभार आप जाने देते हैं, इस बार जरूर यहाँ से शायद बोनस पॉइंट प्राप्त होगा। 11-8 का स्कोर है और अब पहली दफा इस मुकाबले में सुपर टैकल का माहौल ऑन है। सुपर टैकल यहाँ पर ऑन है पंचाला प्राइड के लिए। यहाँ पर आप देखना होगा किस तरह से पेरियार पैंथर्स के रेडर कितना अंदर जाना चाहेंगे। This should be a super tackle. That's a good one coming in from Ankit Singh. When we see him as a right corner, you know, he is brilliant. So that's the thing we have seen in the super tackle. Right timing, and he goes for the perfect dive on the angle of the raider. And timely support comes in from the left flank. So that's the first super tackle for them. जी, और सत्यम और विशाल का बहुत अच्छा सपोर्ट वहां पर देखने को मिला। अंकित सिंह जो बकमाल डिफेंडर रहे हैं, बहुत अच्छी डिफेंस की इन्होंने अपनी कलाओं को दर्शाया है और लगातार बहुत ही अच्छे रेडर के विरुद्ध अच्छा डिफेंस करते नजर आए हैं। अब देखना होगा यहाँ से अब एक बार फिर से किस तरह से यहाँ से विशाल कुमार बोनस पॉइंट, यानी कि पेरियार पैंथर्स लगातार बोनस लेने दे रही है। जिस तरह से शायद कोच वहाँ पर बात भी कर रहे थे बोनसेस की, बहुत आवश्यक हो जाता है किसी भी कॉर्नर के खिलाड़ी के लिए। और दोनों ही टीम के लिए ना लेफ्ट कॉर्नर के कप्तान है गौरव चिल्लर और अरमान। Now, you know, Harshit, we have Vishal, who is a left raider, and Sandeep and Prince, who are right raiders. In this case, they need to rotate the raiders. That's what I say. He was good at doing that bonus. He went in so quickly and got that bonus. So you have those skills. Try and rotate them. So only then these players will get that confidence going into the bigger matches. Number 66, green card. और जरूर यहाँ पर एक ग्रीन कार्ड दिखते हुए नजर आएगा। नंबर 66 को यहाँ पर ग्रीन कार्ड दर्शाया गया है, यानी कि अंकित सिंह पंचाला प्राइड से आप रेड के बीच में ज़्यादा वहाँ पर वार्तालाप कर नहीं सकते हैं, ज़्यादा खिलाड़ियों को आदेश और उन्हें दर्शाए नहीं दे सकते हैं आप, उन्हें दिशाएं। अब देखना होगा यहाँ पर एक बार फिर से विशाल कुमार लेफ्ट रेडर है। बिल्कुल आपने सही कहा, जिस तरह से वो सब्स्टिट्यूट करते रहना, लगातार अच्छा कॉन्टेस्ट बनाए रखना राइट और लेफ्ट रेडर्स का भी बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अब एक बार फिर से विशाल बोनस लेने का क्या प्रयास करेंगे, टर्न एंड टंबल करना चाहते थे पर एक पावरफुल ब्लॉक वहां पर नजर आया। लेफ्ट कवर से शायद वहां पर रवि मौजूद है। पावरफुल प्रदर्शन यहाँ पर डिफेंस द्वारा, देखिए बिल्कुल ताकत के साथ यहाँ पर लाजवाब टैकल। I'll tell you one simple thing, Harshit. You know, if you're turning inward or outward, if it's a left raider, the left cover comes in, raider need to turn left. You know, if it's a right raider, right cover comes in, the raider need to turn right for the escapes. If you miss how to, you know, escape, being a left raider, if you turn towards your right, you would be caught in multiple chains. बहुत ही सही बात आपने कही है राधिका की, आपको इनवर्ट टर्न या फिर आउटवर्ड टर्न होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस बार फिर से शायद अब रिव्यू पंचाला प्राइड की तरफ से क्या नजर आने वाला है। अंकित सिंह जी ऐसा लग जरूर है और बिल्कुल शायद रिव्यू, देखते हैं किस रिव्यू की मांग कर रहे हैं। पंचाला प्राइड की मांग है नो टच पॉइंट। जी हाँ, नो टच पॉइंट। पंचाला प्राइड की मांग है नो टच पॉइंट, जबकि हमारा निर्णय है 1 टच पॉइंट। रिव्यू दे और देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो फर्स्ट एंगल में देखना होगा किस तरह से नजर आया। बहुत दूरी इस दिशा में मौजूद है, क्या यहाँ पर स्लाइट टच होता हुआ नजर आया है जर्सी पर, ये देखना होगा क्योंकि ये बड़ा पॉइंट हो सकता है। इसलिए भी क्योंकि राइट कॉर्नर पर सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंडर वहां पर मौजूद है अंकित सिंह, और अगर यहां पर ये पॉइंट मिलता है तो महज 2 खिलाड़ी मौजूद रह जाएंगे, यानी कि आप ऑल आउट की तरफ धकेल देंगे पंचाला प्राइड को। क्या कहते हैं राधिका आप? बहुत ही it could be, you know, very, you know, touch and go kind of a situation.
as it's a contact game, the jersey would be dangling. The raider might have felt it. The defender would not feel it. So it's a very, very close call. If you look at in Zoom also, it's the benefit of doubt would be there. In that case, the referee's decision would be taken into consideration. So that should be this looks like a very close call. They might lose the review, Harshad. जी बिल्कुल कंक्लूसिव एविडेंस होना, अगर आपका रिव्यू सिद्ध आप करना चाहते हैं तो वो कंक्लूसिव एविडेंस होना जरूरी है। हो सकता है कि हमारे रेफरीज और भी बहुत सारे एंगल्स यहाँ पर देखते हुए नजर आए, पर तकनीकी तौर पर देखिए कितना सक्षम बनता चला जा रहा है ना, हर एक वो खेल कितना तकनीकी तौर पर सक्षम बन गया है। इस बार भी अंकित सिंह को एक बार फिर से अपना शिकार बनाने का पूरा प्रयास किया था अक्षित ने। देखते हैं कि यहाँ पर अंतिम निर्णय क्या आएगा। रिव्यू सफल रहा, no touch point. That's a good one. That's a good one for Panchala Pride to retain the review. There was no touch. और So as we say, it was a very, very close one, is it? So to come to a conclusive evidence, that's a hats off to the TV umpire there. और राधिका पंचाला प्राइड सब्स्टिट्यूट जरूर हो रहा है, उसके बाद एक बार हम फिर से थोड़ी सी बातों को कंटिन्यू करेंगे। क्या आपने कभी ट्राई नहीं किया एज एन ऑफिशियल या फिर एज एन थर्ड रेफरी या फिर टीवी रेफरी? Unfortunately not. I'm pretty comfortable as a commentator. So maybe when my eyesight gets very, very low, or when I'm not able to talk properly, maybe I'll be able to take that position as such. पर देखिए इससे पता लगता है कि हमारे रेफरीज का कार्य भी कितना ज्यादा मुश्किल होता है प्रति रेड में अपना, खासकर ऑन फील्ड एम्पायर्स का, ऑन मैट एम्पायर्स का 19 नंबर जर्सी चहलकर्मी जाकर थोड़ा सा अनसेटल करने का प्रयास किया था डिफेंस को। जरूर वहां पर एम्प्टी रेड कर आए हैं। Periyar Panthers. Now this is the contest we'll be looking for. It's a do or die raid, super tackle opportunity. Now this is a Nishan that need to go fast, but then this is a 2-pointer for do or die raid. Akshit Bill for Periyar Panthers. 2 points, Periyar Panthers. और देखिए एक बार फिर से वही जल्दबाजी यहाँ पर करते हुए एक बार फिर से नजर आए हैं। हालांकि शायद टच कर लिया था, इसके चलते शायद वहाँ पर अटेम्प्ट करना तो बनता ही था, पर निशांत को भी जाना पड़ेगा इस बार बाहर की तरफ। इससे जरूर बचना होगा। एक बार फिर से 3 पॉइंट की लीड पेरियार पैंथर्स के पास है। महज एक खिलाड़ी मौजूद है, वैभव, जो कि एक सब्स्टिट्यूट रेडर हैं अपनी टीम के लिए। वैभव चाहेंगे पॉइंट लेकर आए, लेफ्ट रेडर हैं। क्या किसी भी खिलाड़ी को अपना शिकार बना पाएंगे? क्या डिफेंस को पिछली बार अनसेटल किया था उस तरह का प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे? जी नहीं दोहरा पाएंगे। नंबर 6 जर्सी गौरव चिल्लर, कप्तान के लिए शायद ये पहला पॉइंट है उनका आज के दिन का। Absolutely, and it's a first all-out point for Periyar Panthers here. They did try to hold on, but then that super tackle opportunity they did not take care of, and here the captain takes care, and that is the final verdict. First all-out points for Periyar Panthers. The difference is not much, as we see, all out as well, just a 5-point edge. Substitution, Panchala Pride. Jersey number 3 in 90 now. और एक बार फिर से अच्छी डाई ध्यान रखेगी मेरे भाई, और कुछ भी नहीं। और तू मत टूटिया की छो टूटिया मना मेरे भाई, ठीक है? तेरा ग्राउंड में रहना बहुत जरूरी है, तो जल्दबाजी कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। जिस बारीकियत के साथ यहाँ पर आप कोचेस कॉर्नर को सुन रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। बहुत ही लाजवाब, जिसे आप कहते हैं ना, वो ह्यूमर देते हैं, बहुत अच्छा एंटरटेन भी होते होंगे हमारे दर्शक। जिस तरह से एक बार फिर से अपनी भाषा में उन्होंने कह दिया ना कि भाई तेरा कोर्ट पर खड़े रहना बहुत आवश्यक है, और अक्षित को बता दिया भाई अक्षित तू सिर्फ एक ही विकल्प से आउट हो सकता है, वो है डाइव। अगर वो डाइव कोई खिलाड़ी लगाए तो उसका ध्यान रखियो, और बाकी खिलाड़ियों को कहा गया है कि आप कोर्ट पर बने रहिए, पॉइंट इसी तरह से आते चले जाएंगे। पर अब देखना होगा पंचाला प्राइड गलतियां दोहराता नजर आएगा। एक बार फिर से पंचाला प्राइड का डिफेंस। I mean, if you look at defense of Panchala Pride, they just had one successful tackle. That is also, Ankit, two tackle points. That's for Ankit Singh. That's in a super tackle situation. Rest all of them, they failed. Even in the Periyar Panthers, there were only 2 tackle points. The defenders are not up to the mark. Both the sides actually have it. बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी तक डिफेंस का बहुत ज्यादा खेल का प्रदर्शन हमें देखने को मिला नहीं है, पर इस बार देखने को मिलेगा।
इस बार यहाँ से देखने को मिलेगा। और सुमित चिल्लर ने यहाँ पर ये सरप्राइजिंग टैकल, जो युवा कबड्डी सीरीज मॉनसून एडिशन का यहाँ पर सबसे बड़ी देन थी ना, वो ये थी सरप्राइजिंग टैकल। इस बार तो हालांकि सरप्राइज करने लायक ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि वो कवर की पोजीशन में थे, पर कहते ना कि नजरें हटी दुर्घटना हटी। थोड़ी सी प्रिंस राज ने यहाँ पर अपनी नजरें हटाई थी और कवर से सुमित चिल्लर ने कोई गलती नहीं की, सीधा उनके थाइज पर दे मारा है अपना पंजा। You know, in the last all out, what we have seen, once the Prince Raj was out in the tackle position, when he went for that tackle, he was out and he was not revived back. And now in the first grade itself, Prince Raj is being tackled. Now who will revive him? That's what we say. Give those experiences to these players. It just not depend on Sandeep Kumar, just not depend on Prince Raj every single time. The more experience these players get, the more possibility of these players reviving players like Prince Raj. और आवश्यकता भी है इसकी, कि जिस तरह से जितना आप वहाँ पर समर्थन देंगे, जितना आप साथी खिलाड़ियों के लिए भी वो अनुभव बढ़ेगा, वो मैच प्रैक्टिस बढ़ेगा, क्योंकि आने वाला जिस तरह से ये सीजन ये बहुत बड़ा है। ये बूस्टर राउंड की शुरुआत हुई है, सर्वाइवल राउंड में आपने अच्छा सर्वाइव किया है और आखिरकार यहाँ पर अरमान के अरमान सफल होते नजर आए हैं। शानदार टैकल यहाँ पर देखना होगा। अरमान साथ में शायद क्या विशाल कुमार वहाँ पर मौजूद थे या फिर कौन से खिलाड़ी? जी हाँ, विशाल कुमार। एक बार लगा था कि चैन यहाँ पर टूट रही है, क्या उस गैप से यहाँ पर निकल जाएंगे, पर इस बार चैन में फंसते नजर आए। और जिस तरह से आपने कहा था कि वो मोमेंटम इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स होना जरूरी है, पर चलिए डिफेंस का दहला नंबर 4 जर्सी को मिलेगा एक और पॉइंट। रवि ने पॉइंट प्राप्त किया है अपनी टीम के लिए। Yes, that is what it is. When he executed the kick right in the air, he goes for that thigh hold, ankle hold. So that's a good one for the left corner. It's a 5-point edge, 1.5 minute game for the first half to finish. So Periyar Panthers, they are just keeping up cool. They are not making hasty challenges when they go for that race. Everybody is being rotated there. So it's Akshatul who is scoring points, and everybody is supporting in the raiding. Unlike Panchala Pride, they are mostly depended on Prince Raj. और देखिए बहुत ही सुपर फुटवर्क यहाँ पर। देखिए राधिका किस तरह से जितनी तेजी के साथ वो आमंत्रण देते हैं यहाँ पर डिफेंडर को कि चलिए आप प्रयास कीजिए एक्स्ट्रा, मैं मेरा नेचुरल फुटवर्क करते दिखाते चला जाऊंगा। बहुत ही युवा रेडर हैं, बहुत ही टैलेंटेड रेडर हैं। ओ हो, ये है बाहुबल, ये है बाजूबल। आशीष का यहाँ पर क्या सोलो टैकल नजर आया है और इस तरह से उखाड़ फेंका है। देखिए जिस तरह से यहाँ पर Second time Prince Raj is being tackled. Once by the right cover, now it's by the right corner. So when he is good at the left flank of the defense, why don't you execute your skills there? जी ये भी आपने बिल्कुल सही बात कही। शुरुआती समय में अगर वहां पर प्रिंस राज ने पॉइंट लिए थे तो वो लेफ्ट फ्लैंक पे लिए थे। अब उसके बाद राइट फ्लैंक में जैसे वो जा रहे हैं वैसे धरा दबोचे जा रहे हैं। पिछली बार राइट कवर द्वारा, इस बार राइट कॉर्नर द्वारा। आशीष का एक शानदार वहाँ पर टैकल पॉइंट था, जिस तरह से आप पेड़ को उखाड़ कर फेंकते हैं। हालांकि बिल्कुल भी पेड़ को कभी नहीं उखाड़ना चाहिए, जिस तरह से एनवायरनमेंट को हेल्दी रखने के लिए। और देखिए ग्रीन वहाँ पर पहना भी है ना पंचाला प्राइड ने, एनवायरनमेंट को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रीनरी बनाकर रखना चाहेंगे और इस बार अरमान कह रहे हैं कि चलिए मैं डिफेंस ही नहीं रेड में भी टीम को लीड करते हुए नजर आऊंगा। ये देखकर अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट हाफ लगभग समाप्त होने के कगार पर है, उसमें अरमान धीरे धीरे जाते जाते अपनी टीम के लिए पॉइंट ला रहे हैं। Absolutely, that's what is Arman known for. He is an all-rounder, kept 17 to 22 in favor of Periyar Panthers. Panchala Pride slowly, but they are there. They are picking up, especially when you have Sandeep the Raider who is calling it off, and we have the captain coming up. And 17 to 22, 8 points, nothing much of a difference. 1 point edge for Periyar Panthers, 2 point edge in the defense for Periyar Panthers. They have taken one all out. So that's the difference we are seeing, about 5 points, and it's a 20 minutes match in the next half. So I'm sure Panchala Pride will fight it out. चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मिलेंगे आप सभी के साथ।
और चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे। एक बार फिर से मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में होंगे राधिका, और जिस तरह से पहले हाफ के स्टार जिस तरह से आपको नजर आए अक्षय धुल, उनके बारे में देख लेते हैं। जिस अंदाज में उन्होंने अपनी टीम के लिए प्रदर्शन किया है, देखिए 9 रेड पॉइंट्स महज वहां पर 12 रेड्स में, और हर एक पॉइंट देखिए इसमें सुपर रेड नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि सुपर रेड नहीं है, यानी कि जो इनकी रेड स्ट्राइक रेड है, जो प्रति रेड में इनकी लाइन रेड पॉइंट लाने का जो प्रयास है वो बहुत ही लाजवाब रहा है। बहुत अच्छे अंदाज से अपने आप को यहाँ पर झोंका है अक्षय धुल ने। Absolutely, we are seeing a lot of variation in his rating. That's the reason he's been successful. Especially, he was good at breaking that super tackle situation in the opposite flank. So that's a good one. And here again, we have the same raider who has been the best raider in the squad, Akshay Dhul, with 9 raid points. Will he get that super 10 in the first raid of the second half? 1 versus 5, and he's smart enough. He doesn't want to go deep in. He gets the super 10 we've been waiting for. 1 point. Periyar Panther. Jersey number 7 out. जी और डिफेंस में सोलो टैकल्स के लिए यहाँ पर जाते हुए वो क्या सही समय पर सपोर्ट या फिर आप कह लीजिए इस बार कॉर्नर की पोजीशन में भी बदलाव देखने को मिला। अरमान शायद वहां पर आपको मिड में खेलते हुए नजर आ रहे थे, कॉर्नर की पोजीशन में बदलाव देखने को मिला। राधिका, तो ये क्या नजर आता है आपको, किस मानसिकता के तहत? पर इस बार मानसिकता क्लियर है, इस बार मानसिकता में कोई बदलाव नहीं है कि ये नंबर 14 जर्सी तैयार है पेरियार पैंथर्स। आशीष नंबर 4 जर्सी वहां पर मौजूद है, लाजवाब प्रदर्शन। रवि वहां पर शायद मौजूद है कॉर्नर पर। Absolutely, left cover Ravi. That was, the dash was to the perfection. The execution was good. He just uses that force to, get rid of the raider. Each 1 point. That's what is being awarded. Let's see what happened there. One of the defenders might have stepped out with the force of the raider. Oh yeah, the same defender has gone out. जी यहाँ पर रवि और अजय पंडित की कवर कॉम्बिनेशन की जोड़ी थी। अब एक बार फिर से अक्षित यहाँ पर आपको जाते हुए नजर आएंगे, और जिस तरह से हमने बात की कि प्रिंस राज को खामोश रखने का जो काम किया है पेरियार पैंथर्स के डिफेंडर्स ने, शुरुआत से शायद ये रणनीति बनाकर आए थे, जिसके चलते लगातार शुरुआत से प्रयास कर रहे थे प्रिंस राज के विरुद्ध। कुछ समय असफल रही, पर डिफेंडर्स के लिए सबसे अच्छी बात है कि जब डिफेंडर्स का मोमेंटम बन जाता है तो वो लगातार पॉइंट्स लाते हैं, और जब मोमेंटम आपके अगेंस्ट में होता है तो आप लगातार पॉइंट्स देते हैं। पर आपको सीखना तो पड़ेगा ना। निशांत आज कई सारी गलतियां दोहराते नजर आए हैं, गलतियों से सीख लेना होगा। इस तरह से वॉक लाइन से अगर आप सोलो टैकल करने जा रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट का एंकल नहीं बन रहा है और एंगल भी नहीं बन रहा है, तो राधिका ये शायद व्यर्थ टैकल है। Absolutely, that's the 6th failed tackle for Nishant. He is normally one of the best in the left covers. He goes in right on support, but today he is completely off color. That's a good running hand touch from the right raider. Goes for the right in position. और लगातार हमने जिस तरह से पहले हाफ में भी बात की और इस हाफ में भी बात करेंगे, ये अक्षित, ये ऐसे युवा खिलाड़ी नजर आते थे पेरियार पैंथर्स। अगर हम समर एडिशन में बात करें, सब्स्टिट्यूट कभी कभी इन्हें खेलने का मौका मिलता था, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े सुसज्जित चेहरे वहां पर आपको नजर आते थे। और देखिए इस तरह से इन्होंने भी जो अपनी कहानी लिखी है, मॉनसून एडिशन में अपनी टीम के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ रेडर के तौर पर उभर कर आए हैं। इससे बड़ी कोई कहानी का एग्जाम्पल आप देखते नहीं है। बहुत ही इंस्पिरेशन के तौर पर सभी युवा खिलाड़ियों के लिए जो अभी सब्स्टिट्यूट में बैठे हैं, शायद अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। प्रिंस राज को इस बार लेफ्ट में भी दबोचा जाएगा। गौरव चिल्लर बिल्कुल तैयार थे वहां पर, बिल्कुल तैयारी के साथ वहां पर गौरव चिल्लर मौजूद थे। जैसे थोड़ा सा अंदर की तरफ आए, किक लगाने का प्रयास किया, बहुत अच्छा सपोर्ट वहां पर लेफ्ट कवर रवि से मिला गौरव चिल्लर को, और एक बार फिर से प्रिंस राज को अपना शिकार बनाया है पेरियार पैंथर्स ने। Exactly as we say, they have done their homework well on Prince Raj. That's the reason he's been tackled thrice today, and that is the kind of lessons you need to learn. But target the best in the opposition. Only then you would be able to march ahead. This is Ajay Pandit goes out empty-handed because that's an opportunity for Panchala Pride for the super tackle. जी, आप संदीप ज्यादा अंदर जाने का प्रयास करेंगे नहीं, शायद वो वहां पर डू और डाई रेड का इंतजार कर रहे हैं, और बिल्कुल डू और डाई रेड आएगी। इसमें 2 पॉइंट ये वैल्यूएबल होंगे अगर पंचाला प्राइड यहां से प्राप्त करती है। अक्षय धुल, आज विपक्षी टीम के जो सपने हैं ना डिफेंस के, वो धुल रहे हैं।
अक्षित यहाँ पर लगातार अंकित सिंह को कोई वहाँ पर सपोर्ट मिला नहीं, इतनी ज्यादा अंदर जाकर अक्षित पॉइंट लेकर आ गए, कोई भी सपोर्ट वहाँ से मिलता नजर नहीं आया। एक तरफ तो संदीप थे जो कि रेडर भी हैं, इसलिए शायद वहाँ पर वो कॉम्बिनेशन, वो कॉन्फिडेंस वहाँ पर कॉम्बिनेशन में नजर नहीं आएगा। अब संदीप को रेड में काम करना होगा। संदीप बोनस जरूर शायद आसानी के साथ आपको मिल जाएगा, गौरव चिल्लर के नीचे से आप बोनस प्राप्त कर लेंगे। अगर आप यहाँ से वापस जाएंगे तो महज 2 खिलाड़ी मौजूद मिलेंगे और उनमें से आप एक खुद होंगे। Bonus point, Panchala Pride. Absolutely, and you are a raider. You would have at least, gone for those hand touches. I understand it's a super tackle opportunity, but you have, except for once, you have lost all the super tackle opportunities got to you. And he knows that it's a raider who doesn't have to come. And every single time this happens, they march into the all-out. This is the second all-out point for Periyar Panthers, and look at how brilliantly this raider is working out for Periyar Panthers. Consecutive raids, but he doesn't do any mistakes at all. बिल्कुल आपने सही कहा। और राधिका, उस बात पर एक बार फिर से हम जिस तरह से यहाँ पर हम उजाला डालना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बात की थी ना कि खासकर ऐसे युवा खिलाड़ियों को जब ऐसा समय आता है, महज 2 खिलाड़ी मौजूद होते हैं आपके पास, अब जरूर एक सब्स्टिट्यूट होता नजर आएगा। Number 12 out, 77 in. They would have gone for a substitution defender rather than you having Sandeep as a raider who can't do much of a defensive skill. When to substitute, that's the coach's call. They need to make it right on time. Exactly. और देखिए अब नंबर 77 को एक बार अंदर बुलाते हुए नजर आएंगे। नंबर 10 जर्सी एक बार फिर से प्रिंस राज। और देखिए मैं इनके खेल में कोई निराशावादी प्रदर्शन नहीं था, प्रदर्शन विपक्षी टीम का डिफेंस बहुत अच्छा कर रहा है। देखिए शुरुआत में इन्होंने पॉइंट मिले, उसके बाद इन्हें नहीं मिले। एक बार फिर से मैं ये कहना थोड़ा सा गलत हुआ कि प्रिंस राज के परफॉर्मेंस में बदलाव आया है, जी नहीं, बदलाव आया है यहाँ पर डिफेंस में। पेरियार पैंथर्स का जो डिफेंस अब खेल रहा है, चाहे वो कवर कॉम्बिनेशन हो रवि और सुमित का, चाहे वो कॉर्नर कॉम्बिनेशन हो आशीष और गौरव का, जिस तरह से यहाँ पर आज शायद डिटरमाइन होकर आए थे, वो डिटर्मिनेशन के साथ आए थे पेरियार पैंथर्स कि प्रिंस राज को रोकना है, उनके खिलाफ लगातार अटेम्प्ट करने हैं। Absolutely, that's a kind of homework you need to get in before the match. Try to attack the best of the players, so that would be an easy task for you to march ahead. So that's the kind of homework you need to do. And this is a good running hand. Look at the variation he's getting in. It's not the right flank he attacks the left covers, he attacks the left corners. So he rules the mat whenever he comes up, and that's the 15th raid point for him. और चलिए नंबर 77 को आउट किया था पिछली बार, और इस बार अब अरमान देखिए टीम के लिए चाह रहे हैं रेड करें। कप्तान है, डिफेंस में आज इन्हें इतना ज़्यादा जितना आप इतनी उम्मीद रखते हैं उस तरह का प्रदर्शन तो नज़र निश्चित तौर पर नहीं आया, पर अब रेड में भी चाहते हैं। अपनी टीम के लिए 12 पॉइंट की लीड है पेरियार पैंथर्स के पास। 12.5 मिनट का यहाँ पर समय शेष है राधिका, ये बहुत ही इनफ समय है कि किसी भी लीड को आप कम कर सकते हैं। नंबर 3 अजय पंडित नंबर 3, जितना इनका ये जर्सी नंबर है शायद उतना ही पॉइंट लेकर जाएंगे। जी हाँ, सुपर रेड यहाँ से जाती हुई नजर आएगी आसानी के साथ। अजय पंडित देखिए, इन्हें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ये महज गए, बॉक लाइन को पार किया, अपना नेचुरल खेल दर्शाया कि थोड़ा सा अंदर जाकर प्रयास करें। ये देखिए सिर्फ खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि कोई डिफेंडर गलती करे, और 3 डिफेंडर्स ने एक साथ गलती की है, जिसके चलते 3 पॉइंट का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। Exactly, and Arman, yes, now he is getting into the rhythm. He is getting those points, but then Panchala Pride is down to 3 men. I mean, of course, they will have a revival. One marching ahead and then giving a back kick on the cover. So that's a good one. So it's 1 versus 4 here, and it's Ajay Pandit. He doesn't need to go deep in. Just before this, they had a super raid. And look at how smart he is. He attacks Prince Raj there. चलिए शुरुआती अगर आप 8 मिनट के खेल को छोड़ देना तो उसके बाद यहाँ पर प्रिंस राज का वो दिन रहा नहीं है। लगातार यहाँ पर, और यहाँ पर सुपर 10 यहाँ पर पूरा करते हुए नजर आएंगे। अजय पंडित की हमने बात की अक्षित धुल की, तो बहुत अच्छे रेडर्स यहाँ पर खेल रहे हैं, बहुत अच्छा रेडिंग में यहाँ पर कारनामा करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ पर पेरियार पैंथर्स के रेडर्स। अक्षित धुल 15 पॉइंट प्राप्त कर चुके हैं, अजय पंडित अपना सुपर 10 बना चुके हैं। अरमान अब रेड में अपनी टीम के लिए पॉइंट लाना चाह रहे हैं, और 2 पॉइंट क्या शायद प्राप्त किए हैं, या फिर 1 पॉइंट मिलेगा, देखना होगा। पंचला प्राइड जर्सी नंबर 3
That's a smart one. He waited near the midline to touch yet another defender. Yes, he did not. That's a good one. Will they review it? They might review it. चल अजय पंडित, और उससे पहले सुनते हैं टीवी अंपायर। पेरियर पैंथर की मांग है केवल 1 पॉइंट, जबकि हमारा निर्णय है 2 पॉइंट। कृपया रिव्यू दीजिए। और जाते जाते शायद क्या गौरव चिल्लर को अपना शिकार बनाया था यहाँ पर, तो बिल्कुल अजय पंडित आपको डाइव लगाते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर देखना होगा क्या पहले मिड लाइन को क्रॉस कर दिया था। जी हाँ, हाथ शायद वहाँ पर क्या टच किया था, पर पहले क्या एक बार मिड लाइन को अगर आप क्रॉस कर देते हैं तो उसके बाद आपके पास वहाँ पर वो लीगल राइट होता नहीं कि आप एक और डिफेंडर को वहाँ से हाथ लगा लें और वो पॉइंट आपको मिले। देखना होगा पर अरमान अच्छा प्रदर्शन, 1 पॉइंट तो निश्चित तौर पर मिला है। अब बतौर रेडर अपनी टीम के लिए यही काम करना है इन्हें। Yeah, 2 players in question. One is definitely gone. The second one. Did Arman reach the midline? And after which he touched the second defender is the question. Once you cross the midline, you are not eligible to touch the defender and claim for those points. Radio successful, so that's only 1 point for Arman there. So he did cross the midline before he touches the second defender. पैंथर कप्तान, आपका रिव्यू बाकी है। जी, अब रिव्यू सक्सेसफुल और रिव्यू रिटेन करते हुए नजर आए और बिल्कुल सही समय पर यहाँ पर रिव्यू लिया भी गया था और अच्छी पैनी नजरें यहाँ पर कप्तान की थी, क्योंकि शायद ये देखिए यहाँ पर पहले उन्होंने मिडलाइन को क्रॉस कर दिया था, उसके बाद जाकर गौरव चिल्लर को अपना शिकार बनाने का प्रयास कर रहे थे। अब देखना होगा अक्षित एक बार फिर से 15 पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर अपनी टीम के लिए स्कोर कर चुके हैं। देखना होगा कितना अंदर जाना चाहेंगे। एक बार फिर से लेफ्ट कॉर्नर पर वहाँ पर नंबर 11 जर्सी संदीप मौजूद है, जो कि एक रेडर हैं, ऑलराउंडर आप इन्हें जरूर गिनते हैं, पर युवा खिलाड़ी हैं। और देखना होगा यहाँ पर एंड लाइन की तरफ जाने का। एक और बार अक्षित 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 अक्षित, you did a beautiful job here. Periyar Panthers. He did not, get tackled even once today. So that should be the 17th point he's claiming for. Oh, here, the Armani, did he get in contact with the radar? So that's a verdict in favor of Periyar Panthers. So that's the 17th for Akshit Dul. So I'm sure, given we have 9 minutes in the game, I'm sure we'll see 2 super tens for him in a single match. और देखिए राधिका, हमने पिछली बार भी यही बात की थी कि जब महज 2 खिलाड़ी बचे थे, संदीप वहां पर मौजूद थे। इस बार क्या ये सुपर टैकल कर लिया जाएगा? चलिए, इस बार तो अच्छा ये प्रदर्शन है और निशांत और संदीप ने मिलकर ये पहला सुपर टैकल किया है अपनी टीम के लिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर इस हाफ में सुपर टैकल की जो यहाँ पर जो कमी देखने को मिल रही थी, इस बार अच्छा टैकल और अच्छा संभाला वहां पर निशांत ने, बहुत अच्छे अंदाज से यहाँ पर सुपर टैकल किया। एक बार जरूर संदीप की जकड़न से पकड़न से बच गए थे। 3 आदमी हैं, 2-3 ना जाओ। तो सुन मेरी बात है, बोनस चले आजा, जब भी कोई दिक्कत नहीं बनेगी। सुन ले, 1 की ट्राई उड़े लेवा दिए, हाँ 5 हम खेल लिए, बोनस पे लागती हो तो मार दिए, खाम खा मत मार। और जिस तरह से कोच और फिर ले लिए रेड, ठीक है ना, 5 खेल जाइए। टीम कोच पेरियर पैंथर, वापस जाइए आप। देखिए, कोच बता रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह से साथी विपक्षी टीम का जो खिलाड़ी है ना, पंचाला प्राइड का, यानी कि पेरियार पैंथर्स के अगेंस्ट वो बोनस का प्रयास करेंगे, तो अगर बोनस का प्रयास करें तो जकड़ने का प्रयास कीजिए। और मुझे लग रहा है कि गौरव चिल्लर यहाँ पर तैयारी करेंगे अगर बोनस के लिए ज्यादा अंदर जाते हुए। जी नहीं, इस बार शायद जाने दिया है और बोनस दे भी दिया गया है पंचाला प्राइड के लिए। That is what happens if you take bonus when you have the opportunity. That not only lessens up the gap of the scores, but also it postpones your do or die raid. So that means you won't be under pressure if you go for those. And yet again another failed attempt. And today we have seen Nishant completely off color. Not even a successful tackle. This is the 8th failed tackle from Nishant. Periyar Panther, jersey number 9 out. जर्सी नंबर 9 आउट। ये हम रेफरी से आज बहुत बार सुन चुके हैं। देखिए, पिछले टैकल में ऐसा लगा था कि क्या इनका कॉन्फिडेंस वापस बूस्ट अप हो रहा है। पावर हाउस जरूर हैं, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका आपको निश्चित तौर पर नजर आते हैं। अब फिर से संदीप, एक बार फिर से 2 खिलाड़ी, ये बोनस पॉइंट पंचाला प्राइड।
कर नहीं रहे हैं, ज्यादा अंदर जाने का प्रयास किया नहीं। एक बार फिर से अपनी डिफेंसिव स्किल्स पर ज्यादा यहाँ पर सक्षमता दर्शा रहे हैं, क्योंकि 66 नंबर जर्सी अंकित सिंह अपनी टीम के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स में से एक हैं। उनकी तरफ यहाँ पर जाएंगे अजय पंडित, एक हैवी रेडर हैं। देखिए, पर मैं अभी भी ये मानता हूँ कि चलिए संदीप को प्रयास रेड में ही करना चाहिए था, क्योंकि आपका मेन काम है, आपकी मेन स्किल्स है रेडर के तौर पर, तो आपको रेड में जाकर प्रयास करना चाहिए था। राधिका, मुझे पता नहीं आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं, पर आपका मत भी मैं जानना चाहूंगा। Exactly, you know, just before this raid, they had their super tackle. Maybe they thought, you know, they are confident enough to go for those super tackle, and they've just gone for the bonus and came back. But then, as you say, you know, this is the second or third time they are on the verge of the all out, and every single time you just go for the bonus, come back and give out those all outs is also not a good one. So if you're good at those raids, then go for the attempts in the raiding itself. और देखिए, अब रवि साकेत आए हैं और आते संगी एक बार फिर से उन्हें बेंच पर बैठना पड़ेगा। एक बार फिर से उन्हें आते संगी यहाँ पर बेंच पर बैठना पड़ेगा। Not necessary, because it's again and all out there. So bench पे बैठने का भी there is no time there, because they need to come back in yet to play all the 7 in. So this is the third all out points. Periyar Panthers have taken over Panchala Pride. ऑल इन जरूर हो जाएंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन की तरफ एक बार फिर से पंचाला प्राइड जाना चाहेगी? Yeah, it's a time for strategic timeout. Let's listen to what the coaches have to say in this 7-minute game. ठीक है, सुन मेरी बात, साइड पे खेलो, अगर वो लंबू आओ है ना, उस पर उन्हें बनाओ सही गेर के, ठीक है, जाओ तो जाओ, फिर साइड पे खेल, जो 5 रह जाएगा, उड़े क्यों मरवाओ हो लेडरा ने, चावल लेके, ठीक है ना, उड़ाती माल रह जाए, ठीक है, अगर 5 रह जाए ना अड़ाती, फिर खेली, ठीक है, उन्हें छोड़िए मना, बैम हो जाओ, उसको मुझे, और नीचे ना मारिए तो, एल्बर कौन करे, एल्बर टाइट, भीतर मारी, ठीक है, नंबर 66, आइए, सब्स्टिट्यूशन कौन है? और देखिए राधिका, सबसे पहली बात यहाँ पर कोच कॉर्नर में जब हमने सुनी ना, तो वहाँ पर पेरियार पैंथर्स से कोच सुरेंद्र जी कह रहे थे कि उस लंबू अगर वो आए तो उसे आने दीजिए अंदर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो लंबू किसे कहना चाह रहे हैं एक्चुअल में? I think that should be Sandeep for the radar. It should be Sandeep, because that's the one who is firing just now. और क्या अरमान? And this is the player. यहाँ से मुझे सबसे लंबे वैसे अरमान नजर आ रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से अक्षय धुल, नंबर 2 जर्सी। जितनी प्रशंसा की जाए इस खिलाड़ी की, राधिका आप इन्हें बहुत ही शुरुआत से यहाँ पर देख रही हैं, किस तरह से पिछले सीजन से, समर एडिशन से मॉनसून एडिशन में जब ये आए हैं, क्योंकि अब लीड 15 पॉइंट की है, तो हम इस विषय पे थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। सभी युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से अक्षित ने अपने खेल में बदलाव किया है और बहुत कुछ सीखा है, कितना आवश्यक होगा हर एक युवा खिलाड़ी के लिए वो। That's what, given an opportunity, try and perform, so that you will have the best place to play. So that's what, given one opportunity, you need to be 100% ready to perform there. So sitting on the bench, you need not worry about, not getting an opportunity, but understand, when you get an opportunity, you should utilize it. Only then you would be able to see yourself in the playing 7. And also, you have those coaching times as well before the practice sessions and all. Try to impress your coach with the skills you have. Then there might be an opportunity that, you would be put in the starting 7. This is how they do. Periyar Panthers, jersey number 9 out. और आज रेफरी लगातार ये बोलते चले गए, जर्सी नंबर 9 आउट। निशांत अब बहुत उच्च दर्जे के खिलाड़ी हैं, पर ये भी बहुत आवश्यक हो जाता है राधिका की, चाहे कितनी अच्छी काबिलियत हो, पर अगर आपके लिए वो दिन बेहतर नहीं जा रहा है, अगर आपके डिफेंस की तकनीक अच्छी नहीं जा रही है, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें। कबड्डी का खेल कहने को बहुत तेज होता है, 40 मिनट बहुत कम होते हैं, पर मेरा मानना है कि 40 मिनट उतने होते हैं अगर आप संयम बरतेंगे। देखिए डुबकी जरूर लगाई, परंतु गलत दिशा में लगाई गई डुबकी कोई काम की नहीं होती है। अब समुद्र के बीच में डुबकी नहीं लगा सकते हैं, आपको समुद्र के किनारे में डुबकी लगानी होती है। और इस बार
बीच में यहाँ पर डुबकी लगाने चले गए थे, जिसके चलते चलिए अरमान को जाना पड़ेगा और बेंच पर बैठकर समझना होगा। Yes, look at this young raider. He's been an inspiration, as Harshit says, for everybody sitting on the bench. You can be on the starting 7 of the team as well if you perform like this. और राधिका, मुझे ये भी याद है, हमारे बड़े काबिल दोस्त नवीन के साथ में कमेंट्री में था और शायद एक अच्छा नॉकआउट या फिर कुछ बड़ा मुकाबला था, समिट राउंड का शायद मुकाबला था, जहां पर इन्हें बतौर सब्स्टिट्यूट रेडर मौका मिला और इन्होंने डू और डाई रेड या फिर ऐसा कुछ रेड था जहां पर इन्होंने सेल्फ लॉबी में गए थे और डिफेंडर्स को चाहते थे आ जाए, और वहां से इन्होंने जो अपनी कहानी लिखी है, मेरे काबिल दोस्त नवीन ने भी शायद उस समय थोड़ा सा इनके बारे में बताया था कि युवा खिलाड़ी इस तरह से आप नहीं करना चाहेंगे, और वहां से देखिए शायद उन्होंने कमेंटेटर्स को सुना और बड़ा अच्छा लगता है ना राधिका जब कमेंटेटर्स की बात इतनी अच्छी तरह से हमारे सभी खिलाड़ी सुनते हैं। Exactly, that's what we try and figure out what's going wrong and what's going in favor of you. So if they hear us doing so, they should try and implement on those and see if there is a change happening in their skills. और एक और बार अजय पंडित क्या एक बार फिर से ये सुपर रेड प्राप्त कर पाएंगे, और शायद इसी वजह से क्या इनको जर्सी नंबर 3 दिया गया है, यानी कि लगातार ये सुपर रेड कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और उतने ही अंक भी ला कर दे देंगे जितना इनका जर्सी नंबर है। That should be a super raid, and 15 raid points for Ajay Pandit, 18 for Akshay Dil. So both of them are doing brilliant. And after a lot of time, it's Prince Raj who's got those points, but Periyar Panthers are claiming it. They might review it. जी हाँ, देखना हो क्या बोनस की यहाँ पर रिव्यू। टीवी अंपायर पेरियर पैंथर की मांग है, नो बोनस, नो टच पॉइंट। हमारा निर्णय है बोनस +1 टच पॉइंट। प्लीज रिव्यू दीजिए। Now Periyar Panthers takes the review. There was no bonus attempts from Prince Raj, and after which, yes, it was on the line. It was on the line. So bonus is not definitely to award there. But then, did Prince Raj reach the midline? Yes, he did reach the midline. So it could be 1 point for Prince Raj, I would say, and they might lose the review. Not on the bonus, but on player being out, the raider being out. अच्छा, ये थोड़ा सा क्लियर होना बहुत आवश्यक था, क्योंकि पंचाला प्राइड क्या शायद पेरियार पैंथर्स का रिव्यू सिर्फ बोनस बचाने के लिए कर सकती थी। अगर उस निर्णय के साथ अगर वो जाती आगे की तरफ तो शायद उनका यहाँ पर सक्सेसफुल होता हुआ नजर आता, रिटेन एक बार फिर से वो करते। पर देखिए ज़रूर अभी तो मुकाबला इनके पक्ष में है, पर रिव्यू का उपयोग करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और कबड्डी फ्रेटर्निटी में अब हमें रिव्यू का उपयोग कभी कभी बहुत बड़ा मुकाबला आपके करवट में बदल देता है रिव्यू सिस्टम। I mean, we know Prince Raj, he uses the lobbies to perfection, but not today, unfortunately. But then, they have smartly asked two things. There was no bonus is one thing. The other one was, there was no touch point. That means the raider was out. Now, the referee might be getting confused which one to look at. But I'm sure one review asked, they would look at every angle possible. जी हाँ, बिल्कुल, और इसी तरह से एक एक एंगल के साथ, हर डिफरेंट एंगल्स के साथ यहाँ पर हमारे टीवी रेफरीज चेक ऑन करते हुए नजर आएंगे, और देखना होगा क्या वहाँ पर अंतिम निर्णय होगा। प्रिंस राज की धड़कनें तेज जरूर हैं। Looks like Panchala Pride would get 1 point and Periyar Panthers might lose the review. That's what. असफल रहा। Yes, that's what it is. Only 1 point to yeah, that's what it is. Bonus was not awarded, but then the raider was safe. देखिए राधिका, आपकी आंखें उतनी भी कमजोर नहीं है जितनी आप कह रहे थे। देखिए अगर आप यहाँ से आराम से अपनी स्क्रीन पर बैठ के बता रहे हैं ना, तो यू विल ट्राई। आप किस इंडस्ट्री में आ गए हैं, आप एक बार प्लीज ट्राई जरूर कीजिए। ऑफिशियलिंग और जिस तरह से थर्ड एम्पायर्स, क्योंकि आपकी पैनी नजरों से कुछ बच नहीं पाया है।
That's what it is. The verdict remains the same. A Raiders safe, but there was no bonus. So that was 1 point for Prince Raj finally after a long time. और एक बार फिर से पेरियार पैंथर्स वर्सेस पंचाला प्राइड। और हमारे दर्शकों को ये भी बता दें, हम हमारे सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे हम कि जिस तरह से पेरियार पैंथर्स छठे पायदान पर थी और पेरियार पैंथर्स जो पंचाला प्राइड है वो पांचवें पायदान। आओ इस बार जरूर शायद यहाँ से एक पॉइंट। क्या संदीप वहां पर सेल्फ आउट हो गए हैं? क्या वहां पर एंडलाइन को यहाँ पर क्रॉस कर दिया है? अक्षित एक की तरफ, वहां पर 3 डिफेंडर्स आ गए थे। अरमान सही समय पर जाकर वहां पर रोका। Super tackle, that was brilliant. You know, the defender was self out. He is being pulled out of the court. So that was an opportunity for super tackle, and that's a brilliant ankle hold from the left corner. Arman comes into support. So that's 2 points for Panchala Pride, 1 for Periyar Panthers. बिल्कुल, आदित्य और वहां पर अरमान ने मिलकर काम किया इस बार अपनी टीम के लिए। नंबर 77 आदित्य वहां पर मौजूद थे और नंबर 7 अरमान वहां पर मौजूद थे। प्रिंस राज जाते जाते ज्यादा कुछ नहीं तो आप अपनी एक बार फिर से मूवमेंट अपने पक्ष में ले जाएं और साथ ही ये जो डिफरेंस है उसे कम कर जाएं, क्योंकि डिफरेंस का मोल बहुत ज्यादा है। हमारे दर्शक पॉइंट्स टेबल में बताना चाहेंगे पंचाला प्राइड 5वें पायदान पर है और छठे पायदान पर पेरियार पैंथर्स है। पॉइंट्स पर मैच लगभग वहां पर सेम है, पर वो जो डिफरेंस का जो गेम आ जाता है वहां पर बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है पॉइंट्स डिफरेंस। इसलिए आप कम से कम पॉइंट से हर मुकाबले को हारना चाहते हैं और इसलिए आप अंत तक मुकाबले में बना रहना चाहते हैं। आप कभी भी गेम को गिव अप नहीं होने देना चाहते। हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे 5वें और छठे पायदान की हमने बात की तो स्कोर डिफरेंस पॉइंट्स पर मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बड़ी सीरीज में। Exactly, you know, points being carried forward, and also out of the 8 teams, only 6 teams will, you know, march towards the next round. So it's important for them, and it's Arman. Yeah, he escapes. He gets a point there. Jersey number 1 out. जी हाँ, जर्सी नंबर 1 आउट। Sumit Chilla was that. सुमित चिल्लर ने थोड़ा सा प्रयास किया था, पर अजय पंडित की आपने बात की और पेरियार पैंथर्स एक बार फिर से बहुत ही स्ट्रांगली कन्विंस उन्होंने कर दिखा दिया हमारे सभी दर्शकों को। अर्धशतक यहाँ पर पूरा कर दिया है पेरियार पैंथर्स ने। 15 पॉइंट की बहुत ही यहाँ से मैच औपचारिकता मुकाबले में जरूर शेष है, क्योंकि समय लेना चाहेंगे अजय पंडित। शुरुआत में उन्होंने अपना समय निश्चित तौर पर लिया है। 18 पॉइंट जिस तरह से आपको मिलते हुए नजर आए हैं अक्षित दुल के खाते में, अजय पंडित 15 पॉइंट। और डिफेंडर्स में मैं सबसे ज़्यादा इसलिए भी खुश हूँ कि सभी खिलाड़ी लगभग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। गौरव चिल्लर 3 पॉइंट रवि खत्री, 2 पॉइंट सुमित चिल्लर और 2 पॉइंट आशीष चिल्लर, यानी कि हर एक खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहा है। और वहां पर पंचाला प्राइड के लिए किसी भी रेडर का सुपर 10 नहीं हुआ इस बार। एक बार फिर से रिव्यू की मांग की है। They have lost the review. They have lost the review just before this, is it? बस यही एक बार ऑफिशियल शायद चेक ऑन करना चाहेंगे, एक बार फिर से देखना होगा अंतिम निर्णय। No cross. Raider out. 1 point. Periyar Panthers. Yeah, that's what it's saying. You know, they did not ask for the review, but the referees themselves have consulted first before coming to a decision. So now it was in a favor for Periyar Panthers itself. Super tackle opportunity. No, it's 1 versus 4. It's a do or die one. Ajay Pandit comes up. Ajay Pandit with 12 8 points. He is also high on confidence. और जाते जाते अच्छे डिफेंस करना होगा यहाँ पर। परफॉर्म नहीं रही है, देखिए 2 points. 66 अंकित सिंह को अपना शिकार बनाया है। देखना होगा कितने पॉइंट यहाँ 1 पर। point. 1 Periyar point। that Panthers. one. Jersey number 66 out. क्योंकि जब अंकित सिंह ने प्रयास किया और वहीं पर अरमान चाहते थे कि चलिए अंकित को लिया जाए अपने काबू में, वो शायद अपने एंकल होल्ड की ग्रिप को भी चेक कर रहे थे कि मेरी एंकल होल्ड में कितनी ग्रिप मौजूद है। Now this is a less than a minute game and 17-point edge for Periyar Panthers. They have done it well. It was a team combination that worked for Periyar Panthers. Both the Raiders have got their super 10s. Both the Raiders in fact got 38 points in total. Point, And the defenders have done quite well, as we say. 3 for Gaurav, 3 for Ravi and 2 each for Sumit and Ashish. So that's the combination that's worked wonders for Periyar Panthers. They have kept Prince Raj quiet today. जी, और कोच वहाँ पर
बिना शिकंज के बैठे थे, यानी कि अच्छी तरह से यहाँ पर जानते हैं सुरेंद्र की आज उनकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि यहाँ पर जरूर थोड़े से बदलाव आपको देखने को मिलते हैं टीम में, थोड़ा सा कनेक्शन बनने में, जो टीम बॉन्डिंग बनने में वो समय लगता है। ओ अरमान जितनी जल्दी गए उतना जल्दी वापस भी आएंगे, परसूट करने का प्रयास किया था आसानी के साथ 1 पॉइंट। आज अरमान भी रेड में अच्छे पॉइंट्स लेकर आए, बट आप उनसे चाहते हैं कि आप डिफेंस में भी पॉइंट लेकर आए, अपनी टीम के लिए बहुत ही वैल्यूएबल खिलाड़ी हैं। पर चलिए इसी के साथ देखना होगा 37-52 का स्कोर है। मैच ओवर। Yeah, the final match of day 1 of the booster round. The scores here are 52-87 in favor of Periyar Panthers. That's a 15 points victory for the team. Periyar Panthers, they were standing 6th in the table. Panchala Pride were on the 5th. We thought the best would win today because they were almost the equals to get on to the match. But Periyar Panthers were strong today with the combination of Raiders firing and all the 4 defenders working out for the team. बहुत अच्छा खेला है। और समरी की सीधा अब हम बात करना चाहेंगे जिस अंदाज में पेरियार पैंथर्स 52 पॉइंट अगर इन्होंने अपनी टीम के लिए प्राप्त किया और पंचाला प्राइड ने 37 रहे, तो आप निश्चित तौर पर समझ रहे होंगे रेडर्स ने दोनों टीम के लिए अच्छा काम किया है। अरमान शर्मा 8 रेड पॉइंट्स प्राप्त किए, 1 डिफेंस में। टैकल पॉइंट्स आप इनसे और देखेंगे, पर किस तरह से खेली है टीम, हाईलाइट्स की बात कर लेते हैं। हाईलाइट्स में आपको नजर आएंगे प्रिंस राज लगातार सेकेंड हाफ में उनका ना सफल रहना, ये टीम के लिए अपोजिट गए हैं। पंचाला प्राइड के लिए पेरियार पैंथर्स ने बहुत सही रणनीति के साथ उतरा, लगातार शिकार बनाया वहां पर प्रिंस राज को। And there was no plan of action against the Raiders. Either it could be Ajay Pandit or Akshit Dul. Everybody has done their job. That's the reason this was a super tackle opportunity that's been taken care by Panchala Pride, and a dupki that did not work for Arman. So a lot of acrobatic skills we have seen, and this is a super raid we have seen from the raider Ajay Pandit. जी और डिफेंस बड़ा कैजुअल खेलता हुआ नजर आया, जिस तरह से आपने हाइलाइट्स में भी देखा। और इसी के चलते टैकल पॉइंट्स 10 वहां पर पेरियार पैंथर्स के पास है, 6 टैकल पॉइंट्स वहां पर पंचाला प्राइड के पास है। पर ये 6 टैकल पॉइंट्स उनकी काबिलियत के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है, उनके पास और भी ज्यादा अच्छा करने का दमखम है। रेड पॉइंट्स 29 पंचाला प्राइड के खाते में, 34 पेरियार पैंथर्स के खाते में। 6 ऑल आउट पॉइंट्स है जो पूरी तरह से कहानी लिख रहा है इस मुकाबले की। Exactly, the defense to work out. As we say, we have seen all the 4 matches of the booster round day 1. Hampi Heroes had a comfortable win against Kaziranga Rhinos. Murkal Magnets did a fab job against Maratha Marvels again. That was a close encounter where Vijayanagara Veers have won in the 3rd match. And the 4th match, we have witnessed a big marginal win for Periyar Panthers. Do not go away from the fan court because there would be post-match of the just finished match. Before that, we have the best raider. Who else than that? This is Akshit Dul. 12 raid points out. 12 raid attempts, 9 raid points, 75% raid strike rate. Yeah, if you look at the tackles, the best defender with 4 tackle points, 4 tackle attempts, 3 tackle points, 75% is the tackle strike rate of Ravi Khatri, who is on the left cover position of the Periyar Panthers. So the defense worked out well. The Raiders, both of them performed. Ajay Pandit and also Akshit Dul. The defenders, as we say, Gaurav Chila had did it well. Ravi Khatri has done it well. Sumit and Ashish have also 2 points each in the defense. So that's a combination that worked out for Periyar Panthers hat-trick. And yes, we will slip into the presentation of this match. Just stay tuned in fan court.
तो चलिए एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे आप सभी का डे नंबर 10 युवा कबड्डी सीरीज पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ऑफ मैच नंबर 49, जो कि आज के दिन का अंतिम मुकाबला था। दो बेहतरीन टीमें यहां पर आपको खेलती हुई नजर आए। पर चलिए सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान। और सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे पार्टनर्स का। पार्टनर्स ड्रीम 11, broadcast partner Fan Code, our physio partner UEM, our voice of Kabaddi Radio City 91.9 FM और our healthcare partner Zenedic Super Specialty Hospital। तो चलिए एक और बड़ा मुकाबला यहां पर आपको देखने को मिला। पेरियार पैंथर्स और पंचाला प्राइड के मध्य दोनों ही टीमें पांचवें और छठे पायदान पर मौजूद थी और दोनों के पॉइंट्स पर मैच सेम जरूर था, पर निश्चित तौर पर एक टीम आगे जाना चाहती थी। और जिस अंदाज में यहां पर पेरियार पैंथर्स का लाजवाब मुकाबला हमें देखने को मिला, तो चलते हमारे साथ प्रेजेंटेशन में हमारे साथ आज मौजूद होंगे मिस्टर शिवेंद्र नाथ दुबे सर, ट्रेजरर झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन, और हमारे साथ मौजूद होंगे मिस्टर राजेश कुमार सिंह, इंटरनेशनल वॉलीबॉल कोच और साथ ही साथ एसएफ गेम्स काठमांडू से यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं। तो चलिए एक बार हम फिर से उन दोनों का स्वागत करते हैं और सीधा चलते हैं इस बड़े मुकाबले की तरफ और अवार्ड सेशन की यहाँ पर शुरुआत करें तो बेस्ट रीडर की बात करते हैं। जिस अंदाज में इस युवा खिलाड़ी ने एक इंस्पिरेशन के तौर पर उभरे हैं बाकी सभी युवा खिलाड़ियों के लिए, ही इज अक्षयदुल फ्रॉम पेरियार पैंथर्स, स्कोर्ड 18 पॉइंट्स और जिन्होंने लाजवाब प्रदर्शन किया। देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। और चलिए अब जिस अंदाज में हमने बेस्ट रीडर की बात की, उसी अंदाज में हम बात करेंगे बेस्ट डिफेंडर की। तो बेस्ट डिफेंडर इस मुकाबले में निकालना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन हर एक खिलाड़ी से यहां पर हमें देखने को मिल रहा था। पर फिर भी पेरियार पैंथर्स के लिए जहां आवश्यकता थी टीम को डिफेंडर्स के लिए अच्छा प्रदर्शन करना, वहां पर इस खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया और कुल मिलाकर वहां पर पॉइंट मिले हैं। ये हैं पेरियार पैंथर्स से रवि खत्री और इनके कुछ लाजवाब टैकल अब आपके सामने स्क्रीन पर। और अब समय है कबड्डी का कमाल अवार्ड। तो जिस खिलाड़ी ने मल्टीपल सुपर रेट लगाई है, अपनी टीम को जब जब आवश्यकता है तब तब पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं, वो भी मूल्यवान। तो चलिए वो है खिलाड़ी पेरियार पैंथर से नॉन अदर देन अजय पंडित। देखते हैं किस तरह से उन्होंने सुपर रेट्स लगाई है। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये था बूस्टर राउंड का डे नंबर 1। बहुत सारे लाजवाब मुकाबले यहां पर हमें देखने को मिले। पर चलिए, आई एम योर प्रेजेंटर हर्ष शर्मा। दिस इज ऑल फ्रॉम द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ऑफ मैच नंबर 49। Check. Can we a little bit